So, very good evening, student. I am Dheeraj sir from Vatsalabha Manwadi School of Scholar Armori, and welcome you once again. And we are studying social science, and our today's topic is types of resources. Okay. So, in last period we have already studied what are the resources. Am I right? Resources. Resources means what? Resources means anything or any material which belongs to nature or the part of the earth which humans need and value called as resources. Okay. और मैंने मेरा भी एक सिंपल डेफिनेशन बताया था कि the material which belongs to nature useful for the human beings or we can say fulfills the human need called as resources. Okay. Ultimately all things belongs to nature. Okay. And that are all considered as resources if they are fulfilling the human's need and the value. Okay. So there are long lasting list we have about the resources, and that is why there is need to study properly regarding their availability, regarding their value. Okay. So resources की list जो बड़ी है, it is long lasting list. तो ये लॉन्ग लास्टिंग लिस्ट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को स्टडी करना है डिटेल में, उनकी ओरिजिन को जानना है, उनकी अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, वैल्यू, ये सारी चीजें अगर हमको जानना है, स्टडी करना है, तो वी हैव टू क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज टू अंडरस्टैंड देम बेटर वे. Okay ना? So that is why we make the resources types of resources in different categories. And that is why we classified the resources into different categories. क्यों हमने क्लासिफाई किया है? क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं? We want to study them in a particular manner or particular references. जैसे कि मुझे मिनरल्स है, एक रिसोर्सेस है, मिनरल्स में ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन हम करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, फिर अच्छे से हम समझ पाएंगे रिगार्डिंग द यूजेस एंड अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, ये सारी चीजें हमको स्टडी करनी होती है. सो दैट इज व्हाई देयर इज नीड टू क्लासिफाई द रिसोर्सेज इन डिफरेंट टाइप्स. तो हमने तीन मेन टाइप्स बनाए हैं रिसोर्सेज के. एक मेरा स्टेटमेंट है, वो हमेशा याद रखना कि एवरीथिंग और एवरी मटेरियल बिलोंग्स टू नेचर. तो हम भी नेचुरल रिसोर्सेज है, मैनमेड जो भी है मटेरियल, वो भी नेचुरल रिसोर्सेज ही है, क्योंकि व्हाटएवर द मैनमेड रिसोर्सेज आर देयर, वी आर मेड अप that because of the other materials which are already existed in nature. So that is why ultimately all belongs to nature. But हमने to study properly हमने तीन कैटेगरी रिसोर्सेज के बनाए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स. ओके, या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स भी हम इसे बोल सकते हैं. What are the main types of the resources? अगर ऐसे क्वेश्चन आया 1 मार्क्स को, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? There are three main types of the resources: natural resource, human resource and man-made resource. तो अब मुझे आपको एक्सप्लेन करना है what is meant by natural resource. So the material which belongs to nature called as natural resource. Okay, the resource belongs to nature called as natural resource, or ultimately everything belongs to nature. Okay. Now human resource. What is meant by actually human resource? ये भी आपको टर्म समझना पड़ेगा. वैसे तो this video is not for the detailed study. This is only to explain you this flow chart, only types of the resources. But little explanation I would like to give you. Human resource means the human itself. Human itself is the resource. Am I right? For example, Dheeraj sir. Dheeraj sir is a human being. You people are human being and you are the resource. Am I right? Because you are the part of the nation, part of the society, and you are only have the quality, ability to develop other resources. Am I right? तो इसलिए आप ही हमारे देश का, हम सभी लोग हमारे देश का रिसोर्स है, जिसे हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स. क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन जिसे बोलते हैं, रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स. क्योंकि if there are other resources are available in the nation but human resource is not there, तो क्या होगा? कौन उसको डेवलप करेगा? कौन रिसोर्सेज को माइंड करेगा, मिनरल्स को माइंड करेगा, उसको रिफाइनरीज में उसकी इम्प्योरिटीज निकालेगा, फिर उसकी चीजें बनाएगा? कौन बनाएगा? हम बनाएंगे.
सॉइल में कल्टीवेशन कौन करने वाला है? हम करने वाले हैं, ह्यूमन बींग्स करने वाले हैं। सो अल्टीमेटली देयर इज वन मोर टाइप ऑफ द रिसोर्स, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। और किसी भी कंट्री में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई है तो वो उस देश का ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन रिसोर्स है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कंपैरिजन करेंगे जापान की और इंडिया की, तो जापान इज डेवलप्ड कंट्री एंड वी आर ऑन द वे ऑफ डेवलपिंग, वी आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। क्यों? जापान के पास रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी वो डेवलप्ड है, क्योंकि वहां का ह्यूमन रिसोर्स डेवलप है। वहां का जो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलप्ड है, और वो क्या कर सकता है, अदर रिसोर्सेज को अपने देश में बुलाकर फिर उसका यूटिलाइज कर सकता है। ओके, लेकिन हम जापानीज लोगों को हम अपने देश में आकर रहने के लिए नहीं बोल सकते हैं। ओके ना? सो दैट इज व्हाई ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ही हिमसेल्फ, ह्यूमन बीइंग इटसेल्फ डेवलप अदर रिसोर्सेज एंड यूटिलाइज properly. So that is why human resource is very important, and human resources is what? Human being itself called as resource. और वो क्यों? वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि बाकी अदर रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का काम जो है वो ह्यूमन बीइंग ही करता है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। मैनमेड रिसोर्सेज, मैनमेड रिसोर्सेज को हमने अलग कैटेगरी में बनाया है। मैनमेड रिसोर्सेज मींस वी आर एक्सपर्ट टू प्रिपेयर दी टू डेवलप द अदर रिसोर्सेज। सो इसमें फूड अगर हम बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे, हम अपने स्किल और अपने नॉलेज से, ओके, हम अपने स्किल से, अपने नॉलेज से क्या कर सकते हैं, चीजों को डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल दिस स्कूल बिल्डिंग, द स्कूल बिल्डिंग इज द रिसोर्स व्हिच इज मेड अप बाय द ह्यूमन बीइंग। कैसे बना पाया? क्योंकि ह्यूमन बीइंग के पास एक स्किल होता है, एक्सपर्टाइज होता है, नॉलेज होता है, और उस नॉलेज को और स्किल को मिक्स अप करके, एम्बोडाइड करके वो एक नई चीज डेवलप करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैन मेड, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिसमें हम फूड बोलेंगे, रॉ मटेरियल बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। ओके, हमारे टेम्पल्स, हमारे बस स्टॉप, हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे रोडवेज, रेलवेज, ये सारी चीजें जो है वो मैन मेड है। ओके, और मैनमेड रिसोर्सेज तभी पॉसिबल है जब वो अपने स्किल और अपने नॉलेज को क्या करता है, इम्बोडाइड करता है, यूज करता है। सो एनर्जी, जैसे कि अगर हम बोलेंगे कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करते हैं, थर्मल पावर हम जनरेट करते हैं, हम पानी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हम जमीन के अंदर के हीट से जियोथर्मल एनर्जी जनरेट करते हैं, सो टिडल पावर जनरेट करते हैं हम। ओके, सो ये जो विंड एनर्जी है, तो ये सारे जो एनर्जी है वो एनर्जी इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दैट इज व्हाई दीज आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। सो दोस्तों, सो मेन कैटेगरी ऑफ द रिसोर्सेज आर नेचुरल, ह्यूमन एंड मैनमेड। मैनमेड में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फूड ही बताओ, रॉ मटेरियल बताओ, एनर्जी बताओ, आप स्कूल बिल्डिंग बोल सकते हैं, टेम्पल्स बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी आप देखते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आप ब्रिजेस देखते हो, आप कंस्ट्रक्शन देखते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीजें, तीन मेन रिसोर्सेज के बाद the natural resources again divided into two main categories, the renewable resources and non-renewable resources. So now you are too much matured that कि आप renewable resources easily समझ सकते हो। Renewable means they can regenerate with the time of period. Okay, they can regenerate and they are available for us to use again and again. So renewable में again दो प्रकार पाए जाते हैं। रिन्यूएबल जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सनलाइट बोलेंगे, दैट इज रिन्यूएबल, हम वाटर बोलेंगे, दैट इज रिन्यूएबल, हम बायोस्फीयर बोलेंगे, दैट इज रिन्यूएबल। बायोस्फीयर यानी कि हम जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स बोलेंगे, दैट इज रिन्यूएबल। ओके, सो वेजिटेशन आल्सो रिन्यूएबल। ओके, हम पेड़ लगा के प्लांटेशन करके और पेड़ हम जनरेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, सो दैट इज रिन्यूएबल। सो रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी है, रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी है, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बायोटिक एंड अबायोटिक मतलब क्या होता है कि बायोटिक मतलब कि दैट इज जैविक, जैविक इन द सेंस द मटेरियल और द रिसोर्सेज व्हिच डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। ओके, द थिंग्स और द मटेरियल्स और द
resources which are derived or generated from the living beings are called as biotic resources. For example, plants are biotic, है ना. क्रॉप्स, हमारे जो भी क्रॉप्स है फार्म के, वो सभी बायोटिक है, जैविक है. अंडरस्टैंड, जिसको जीव है, जीवित है. ओके, ह्यूमन बीइंग्स है. ओके, सो एनिमल है, दैट इज कैटल वगैरह वगैरह. सो ये सारे जो है बायोटिक रिसोर्सेस है. एंड अबायोटिक मींस द रिसोर्सेस व्हिच आर जनरेटेड फ्रॉम non-living beings or non-living things are called as abiotic resources. Abiotic resources जैसे कि sand है ना, soil है, these are abiotic resources. Abiotic resources. And then here natural resources are again categorized into the different category, that is non-renewable. Non-renewable means which cannot be regenerated. Okay, and it is divided into again two category, non-recyclable and recyclable. अगर हम non-recyclable की बात करेंगे तो उसमें आता है coal which is not going to recycle or it takes millions of years. तो हम लोग millions of years survive करने वाले नहीं हैं. और किसने देखा ये सारी चीजें? So non-recyclable, non-renewable में non-recyclable एक कैटेगरी आती है और recyclable एक कैटेगरी आती है. जैसे कि मेटल्स, जैसे कि मेटल्स भी नॉन रिन्यूएबल है. नॉन रिन्यूएबल मतलब कि फॉर एग्जांपल अपने सारा का सारा आयरन, अपने आयरन और निकाल दिया अर्थ के अंदर से, अर्थ बेनिथ से. सो इट कैन नॉट गोइंग टू रिन्यूएबल, दैट इज व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल. ओके, बट इट कैन बी रिसाइक्लेबल. यानी कि अगर आप मेटल्स को रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं. यानी कि समझो आयरन बार आपके घर में पड़े हुए हैं. ओके, तो आयरन बार यानी कि सलाखें वगैरह या कोई भी चीज, फैन खराब हो गया, आयरन जो उसके पाते वगैरह होते हैं, सो दैट यू कैन रिसाइकल इट एंड यू कैन यूटिलाइज इट इन अनदर यूजेस. ओके, जैसे कि अगर आप बोलेंगे वो जो कबाड़ी वाला आपके एरिया में आता होगा, तो कबाड़ी में अगर आप लोग आयरन वगैरह या आयरन बार या कोई भी चीज बेचते हो तो इट कैन बी रिसाइक्लेबल, है ना. सो फैक्ट्री में फिर से जाके मेल्ट होके फिर से वो नई चीज बनाई जाती है. और प्लास्टिक की भी सेम बात है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिसाइक्लेबल. बट वो कैन नॉट द थिंग्स व्हिच आर रिसाइक्लेबल ना, जैसे कि मेटल्स वगैरह, वो फिर से रिन्यूएबल नहीं हो सकते हैं, बट वो रिसाइक्लेबल हो सकते हैं. बट कुछ चीजें ऐसी है नॉन रिन्यूएबल जो नॉन रिसाइक्लेबल भी है. एक बार यूज के खत्म हो गया. नेचुरल गैस एक बार जल गया, खत्म हो गया. नेचुरल गैस भी खत्म हो जाता है, कोल भी खत्म हो जाता है ना. डीजल, पेट्रोल, दैट इज क्रूड ऑयल जो भी है हमारा नेचुरल मिनरल ऑयल, वो भी यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिसाइक्लेबल है. ओके, पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल दिए, 60 पर लीटर का एवरेज है, तो 60 किलोमीटर चलने के बाद आपका 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया, फिर से वो वापस आने वाला नहीं है. सो दैट इज नॉन रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल. एंड रिसाइक्लेबल, नॉन रिन्यूएबल एक कैटेगरी बनाई हुई है. सो स्टूडेंट्स, so these are the all types of resources, जिसमें मेन कैटेगरी है नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड. ये तीन चीजें आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा. नेचुरल, all ultimate all the resources belongs to nature. human itself, हम लोग खुद रिसोर्स है, क्योंकि वी हैव द नॉलेज एंड एबिलिटी एंड स्किल टू डेवलप अदर रिसोर्सेज. तो हम महत्वपूर्ण हैं. ओके, उसके बाद मैनमेड, यानी कि हमारे एक्सपर्टाइज, हमारे नॉलेज और हमारे स्किल के हेल्प, विद द हेल्प ऑफ दैट नॉलेज एंड स्किल एंड ऑल थिंग्स वी डेवलप अदर रिसोर्सेज. जैसे कि दिस इज द स्कूल बिल्डिंग, you here come every day and takes your education. So this is the man-made. This fan is man-made, this board is man-made, this chalk is man-made. So this is all man-made resources. Okay, so natural, renewable and non-renewable. Renewable again divided into biotic and abiotic. Non-renewable, non-recyclable, recyclable. So this is resources. And some other types also are there. We have categorized to study more easily about the resources. We categorize the resources. जैसे कि एक है potential resources है. Potential resources means the resources are not fully developed. Okay, or there is no
technological and scientific development to take out the particular resources and utilize, so that resources should be considered as potential, जिसमें क्षमता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे डेजर्ट में बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो उसको यूटिलाइज करने का जो टेक्नोलॉजी है वो अभी तक उतने मात्रा में ह्यूज क्वांटिटी में वो डेवलप नहीं हुआ है. अभी भी हम थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे डेवलप है, अभी भी हम सनलाइट प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं. सो दैट इज व्हाई द सनलाइट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल रिसोर्स, है ना. या फिर जो भी रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर हम हिमालयन रीजन की बात करेंगे जहां पर आइस लेयर है ना, स्नो लेयर है, वो लेयर में छुपे हुए मिनरल्स को भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं. या फिर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की बात करेंगे विच इज फुल्ली स्नो कवर्ड एरिया, है ना, तो उसमें भी दड़े हुए छिपे हुए मिनरल्स या भी रिसोर्सेस है उसको यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और साइंटिफिक डेवलपमेंट, एंड दैट इज व्हाई दे आर स्टिल पोटेंशियल. क्षमता है बट उसमें हम यूज नहीं कर पा रहे हैं. अंडरस्टैंड. सो उसके बाद है एक्चुअल रिसोर्सेस. एक्चुअल रिसोर्सेस मींस whatever you are looking in surround now, that are all actual resources, means developed and we are utilizing that are all considered as actual resources. मैं बहुत सिंपल आपको समझा रहा हूँ. एक्चुअल रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करेंगे, समझो छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करते हैं हम. छत्तीसगढ़ स्टेट या झारखंड स्टेट में जो भी कोल माइंस है ना, बोकारो बोलो, वेस्ट बंगाल का रानीगंज बोलो, ये जो कोल माइंस है दैट आर ऑलरेडी द कोल्स वी आर टेकिंग आउट एंड वी आर यूटिलाइजिंग, क्योंकि हमने उसका प्रॉपर सर्वे किया है, प्रॉपर हमने उस वहाँ के माइंस में जो भी कोल हमको मिल रहा है उसकी क्वालिटी हमने स्टडी की है, मार्केट हमने स्टडी किया है, हम कहाँ उसको यूटिलाइज करेंगे. सो दैट इज ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी and area which is already surveyed in terms of the quality and quantity, okay, and the economic value. So that are actual resources, we are ready to use them. And the reserve resources means the resources which are the alternative for the existing resources. For example, iron, day by day iron is getting costly, तो आयरन के लिए दूसरे कोई चीजें, दूसरे कोई और जैसे दूसरा कोई मेटल हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं. तो ऐसे रिसोर्सेस को, ऐसे चीजों को हम बोलेंगे रिजर्व रिसोर्सेस, कि उसमें पोटेंशियल है, आगे जाके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं आयरन से. सो दैट आर कंसिडर्ड एज रिजर्व रिसोर्सेस. सो आई होप यू get an idea regarding the types of resources. I'm only introducing you this. You can go through the text and you can compare with this my explanation. You can read out and you can take out the notes. So I request you, please write this note which I have wrote on the board and go through the textbook and you will get idea regarding this. So thank you very much for watching this. I hope you enjoyed this and I hope you will study properly. So thank you very much.